Yes, sure. Good morning, friends. Today it gives me immense pleasure in introducing to you, although he requires no introduction, Rameshji Poddar. He is the Managing Director, Chairman of Siaram Silk Mills Limited. We have all been a witness to the success Siaram has achieved, and I would not be wrong in saying that he is the architect of Siaram's growth trajectory, enabling the creation of various strong brands like Siaram's, J.M. Street, Mr. Luxembourg, MST, Moretti, Royal Linen, and now he has a global venture with the Italian brand Cadini, which is a garmenting brand. Much of his success can be attributed to the core values of passion, integrity, value creation, humility, excellence, and mainly the team spirit which he has inculcated into his organization. And this has stood by him and his company in great steel. It is under his leadership that Siarams has made rapid strides both domestically and internationally. Rameshji has founded his business on the principle of mutual respect and appreciation of human capital, which has led him to create and foster long-standing business relationships. मेरा रमेश जी के साथ धंधा कोई खास होता नहीं है, लेकिन इतने बढ़िया इंसान है कि उनके साथ बात करो तो अपने को कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है. एक 5 मिनट भी आप उनसे बात कर लो तो you earn something out of that small conversation with them. Being a manufacturer of both fabrics and garments, he is, in my opinion, the perfect person to understand all our concerns, especially during this time of grave uncertainty. Today he is here to give us a positive outlook on the future of our industry and pre and post COVID-19 coronavirus. We also have a few questions which we will be putting to him after he finishes his starting note, which will last for about half an hour. And then we have a set of predetermined questions which we have framed in our organization, which we'll be sharing with him, asking him, and he will answer those questions for us. So without wasting a lot of time, let us go ahead with the talk with Rameshji and get inspired in this time of gloom and doom, what people call it. Thank you, Rajat भाई. इतने अच्छे वर्ड्स आपने बोले हैं, इसके मैं इतना लायक हूँ नहीं. ऐसी कुछ बात नहीं. लोगों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है. गुड मॉर्निंग टू ऑल. एंड ये जो एक प्रोग्राम रजत भाई ने अरेंज किया है, उसके लिए फिर से मैं अपने दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. खास करके रजत भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को ये आपस में बातचीत करने का मौका मिला. तो दोस्तों, हम लोग सब घर में हैं. सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे. काफ़ी दिनों से हम घर में ही हैं और एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कभी हमने महसूस सोची भी नहीं होगी और कभी इस तरह का हमने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से हमको रहना पड़ेगा, और भगवान ना करे फिर से ऐसी कोई स्थिति आए. तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन चल रही है और काफ़ी तकलीफ़ें हमको होने वाली भी हैं, और आज के वक्त के घर में बैठ करके हम लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं. और ये सिर्फ हमारे साथ में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी फैली हुई है. तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने एक दिन का लॉकआउट किया था कुछ दिनों पहले, तो ऐसा लगा था कि एक दिन के बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, एक दिन के लॉकआउट के बाद. लेकिन उसके बीच में ही उन्होंने फिर 21 दिन का और एक एक्सटेंशन कर दिया लॉकआउट का, और फिर 5-6 दिन पहले और एक एक्सटेंशन कर दिया. तो जब ये एक्सटेंशन हुआ था फर्स्ट टाइम, तब मन में थोड़ी सी घबराहट हुई थी, क्योंकि जितने भी लोगों को सुनो, जो टीवी देखो, न्यूज़ देखो, तो सब नेगेटिव न्यूज़ थी. अपने इंडस्ट्री के स्टालवर्ड या जितने भी लोग, सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे थे. तो इतना दिन बंद होने के किस तरह से गुजारेंगे और क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे, उसको सोच करके थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही थी 2-3 दिन. लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों ने सब मिलकर के डिसाइड किया. कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बातचीत हुई, हमारे ऑफिस के कंपनी के बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ में हमने मीटिंग की 4-5वें दिन, और हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि अब हमको मिलकर के ये सिचुएशन को फेस करना है, क्योंकि ये तो आ ही गई है सिचुएशन, और ये कोई पूरी दुनिया पर आई है. सिर्फ हमारी कंपनी के लिए या हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया पर आई है, पूरे देश पर आई है.
तो हमको अब सबसे पहला काम तो ये करना है कि एकदम पॉजिटिव होना है और बहुत प्लेजरली ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो हम लोगों ने वो सब चीजें फिर शुरू कर दी और कंटिन्यूअसली हम आपस में सब डायलॉग कर रहे हैं। और आज रजत भाई की वजह से आप सभी लोगों से भी बात करने का मौका मिला है। तो थोड़े से मायूसी के बाद में फिर 2-3 दिन बाद में मन में एक साहस और उत्साह आ गया, क्योंकि फिर बाद में हम लोगों ने एक तो ये डिसाइड किया कि ये नेगेटिव न्यूज नहीं देखनी है। पूरे दिन में 10-15 मिनट देख लो ताकि क्या हो रहा है वो पता चल जाए। नेगेटिव व्हाट्सएप ना तो भेजने हैं ना पढ़ने हैं, तो फिर करना क्या है। तो फिर हम लोगों ने ये नक्की किया कि ये वक्त को हमको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना है, अच्छी फिल्में देखनी है, कोई मोटिवेटिंग फिल्में देखनी है और कोई स्पिरिचुअल स्पीचेस सुनने हैं। तो ये सब चीजें करने से अच्छा वक्त गुजरने लग गया और जो हमारी लाइफ में हम लोगों ने कभी किया नहीं वो मौका हमको मिला। फिर इसके बाद में हमारे टेक्सटाइल्स की जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री है उसमें हमको अपने परिवार के साथ में बैठ करके बात करने का कभी इतना मौका मिलता ही नहीं है। तो ये एक हमको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक मौका मिला है जब हम हमारे परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। तो हमने यही चीज शुरू की और फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की, स्पीचेस सुनने शुरू किए। तो मेरे को एक किताब मैंने जो आज से 15-20 दिन पहले पढ़ी थी और एक किताब वापस से मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ी थी, उसमें कुछ बातें जो आज की सिचुएशन से रिलेट करती है मैं उसका मेंशन करना चाहूंगा। तो एक बुक जो मैंने 20 दिन पहले पढ़ी थी, मैंने कुछ लोगों को बताया भी था, उसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस और ये को-ऑथर्ड बाय दानाह जौहर और इयान मार्शल के द्वारा लिखी गई किताब है। और ये जो बुक है, इस बुक का थीम ये है कि ये दोनों ऑथर ने मिलकर के 3000 सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया कि ये लोग कैसे अपनी जिंदगी को करते हैं, व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल नॉट ओनली एज अ बिजनेस लीडर, सक्सेसफुल एज अ हस्बैंड, सक्सेसफुल एज अ वाइफ, सक्सेसफुल एज अ फ्रेंड, बॉस, नेबर, फ्रेंड, एवरी इन ऑल एरियाज जो लोग सक्सेसफुल हैं। देखिए आप बिजनेस में सक्सेसफुल हैं लेकिन एक फैमिली को अगर अच्छे से नहीं चला पा रहे देन आल्सो वी आर नॉट सक्सेसफुल। तो ऑल दी एरिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों से इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद में कुछ एस्पेक्ट्स उन्होंने निकाल करके सामने लाए, 8 एस्पेक्ट्स। तो हमारी आज की जो सिचुएशन से 2-3 एस्पेक्ट्स मैच करते हैं, दोज ओनली। बाकी आपको और एस्पेक्ट्स देखने हैं तो यू कैन रीड दिस बुक आफ्टरवर्ड एंड व्हाट आर द 8 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सक्सेसफुल पीपल। आप भी उसको ट्राई करिए, गुड बुक। तो जो मेन आज के अपने एरिया से बातें रिलेट करती है, वो जो फर्स्ट एस्पेक्ट था इनका, इतने सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया था उसमें द फर्स्ट एस्पेक्ट वाज फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। तो मेरी समझ से आज के दिन ये जो हमारी स्थिति बनी है पूरे वर्ल्ड की, हमारे देश की और हमारे कंपनियों की, उसमें ये बात बहुत अच्छे से लागू पड़ती है। क्योंकि डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि आफ्टर कोरोना लाइफ विल बी डिफरेंट, दुनिया एक अलग तरीके की होने वाली है। तो जो अपने आप को उस माहौल में उस तरीके में फ्लेक्सिबल होगा चेंज करने के लिए, वो जल्दी इससे उभर करके आएगा। तो वैसे भी चेंज अगर मौसम के हिसाब से या मौके के हिसाब से करें तो ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा चेंज होने वाला है जो हमारी सभी लोगों की, एक तो वर्किंग में शायद चेंज होगा या कार्य प्रणाली में चेंज होगा या हमारी सोच में चेंज होगा। थोड़ा वक्त बताएगा कि क्या क्या चेंज हमको करना पड़ेगा, लेकिन चेंज तो काफी कुछ करना पड़ेगा हमको। जो कुछ हम लोग अभी परसीव कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 2-3-4-5 जो मुझे समझ में आ रही है वो, और बाकी जब परिस्थिति जैसी आएगी उस हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। तो ये एक मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा ये सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में, जो फ्लेक्सिबल टू चेंज थे, मौसम के हिसाब से, मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते थे। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई वो थी एन एबिलिटी टू फेस ह्यूज सफरिंग ऑफ द लाइफ। तो ये एक कहावत है कि लाइफ इज अ पैकेज डील फ्रॉम द गॉड। तो भगवान ने ये जो हमको जिंदगी दी है, खूबसूरत जिंदगी जो दी है, हम खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी चीजें ही होगी।
हमेशा खुशियां ही रहेगी जरूरी नहीं है, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की चीजें होने वाली है। आज की भी जो सिचुएशन है ये एक बहुत भारी सफरिंग की सिचुएशन है, बहुत बड़ी सफरिंग पूरी दुनिया में चल रही है, सभी के ऊपर चल रही है। तो ये जो सक्सेसफुल लीडर्स थे 3000 लोग, तो इसमें ये बात एक इम्पोर्टेंट सामने उभर के आई कि ये सफरिंग के दौरान इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ करके निकाली कि जो सफरिंग के दौरान ही पता चलती है, अदरवाइज हमारी नॉर्मल लाइफ में हमको पता नहीं चलती हमारी क्या गलतियां हो रही है या कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमको कुछ काम करना है, हमको सुधारना है। उसके लिए एक राइट टाइम है कि आज हमारे पर एक बहुत बड़ी सफरिंग चल रही है। तो इस बुक में मुझे ये समझ में आया कि हमको सब मिल करके जो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जो आज हम अच्छे से निकाल सकते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद नहीं निकाल पाएंगे। So this was a point which I thought is related to our today's situation. तो हम सबको मिल करके हमारी क्या सफरिंग में आज अच्छे पॉइंट निकल करके आ सकते हैं। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो तकलीफें तो बहुत है, थाउजेंड्स तकलीफ है, और उसको गिनने बैठेंगे तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। देखिए, मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि सुन करके थोड़ा दिल को ठंडक लगती है, लेकिन सिचुएशन रियल ये है कि 3-4 महीने कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सब जगह पूरी दुनिया बंद है, अपना हिंदुस्तान बंद है। आप जस्ट इमेजिन करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीरो इनकम के ऊपर 2-3 महीना चलेगी तो अपनी इकोनॉमी का क्या हालत होगा, ये आप, और उनके खर्चे ज्यादा हो रखे हैं अभी। उसी तरह से हमारे सभी पूरी इंडस्ट्री का भी यही हाल होगा, हमारे पर्सनल कंपनी का भी यही हाल होगा, सभी का यही हाल होने वाला है। लेकिन ये जो बुक में इस सिचुएशन में हम कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो हमको आने वाले समय में हेल्प करेंगे। तो दैट वाज द पॉइंट। फिर मेजर तो आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स, बाकी इसके अलावा और आपको अगर अच्छी चीजें हैं जो 3000 लोगों ने वो क्या सोचते हैं ऐसे वक्त में और वो क्यों सक्सेसफुल हुए, तो आप ये किताब पढ़ लीजिए। अगेन आई विल, इसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। तो आप लोगों को लगे तो आप इसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद में मैं अभी 3-4 दिन पहले ही एक और किताब पढ़ रहा था जो ये सफरिंग के बारे में ही बुक थी, और वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और उस बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये एक विक्टर फ्रैंकल करके एक साइकेट्रिस्ट थे, आज से 80-90 साल पहले। तो इन्होंने ये किताब लिखी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 5-10 बुक्स वर्ल्ड में पढ़ी जाने वाली सबसे अच्छी 10 किताबों में से एक किताब है, जो हमारी आज की सिचुएशन से काफी रिलेट करती है। तो ये विक्टर फ्रैंकल जो है, ये 1940 में हिटलर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब बहुत सारे यहूदियों को काफी संख्या में कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जेल जैसे भर्ती कर दिया था और उन पर बहुत जुल्म किए थे, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वो इतने उन्होंने इन पर अत्याचार किए, यहाँ तक कि ये विक्टर फ्रैंकल जो है, इसकी पूरी फैमिली भी वहां पर ये कैंप में डेथ हो गई उनकी। बट ये विक्टर फ्रैंकल जिन्होंने ये किताब वहां पर लिखी, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से लिया। वहां के जो ऑफिसर्स थे, वहां के जो अधिकारी लोग थे जो इनको तकलीफ देते थे, उनको मारते भी थे, बहुत काम कराते थे, खाना नहीं देते थे। कई पिक्चर्स मैंने, इसमें एक फिल्म भी शायद आई है। तो इतनी बुरी हालत उन्होंने की कर दी थी कि कई लोग वहां पर ये शॉक और सदमे से ही उनकी डेथ हो गई। बट विक्टर फ्रैंकल ने वहां के अधिकारियों को कहा कि आप मेरे शरीर पर अत्याचार कर सकते हो, मेरे हाथ काट सकते हो, मुझे खाना नहीं दे सकते, मुझे और मेरे से बहुत काम करा सकते हो, लेकिन मेरे माइंड की फ्रीडम को आप नहीं ले सकते। दैट इज, वो मेरे कंट्रोल में है और वो मैं एकदम मस्त हूँ, आज के दिन में मस्त हूँ। और इस आशा से उन्होंने 3 साल ये जेल जैसी जगह में निकाले, और निकालने के बाद में उन्होंने उनके साथ में जो ये बाकी के कैदी लोग थे, कैदी तो नहीं कहना चाहिए, यहूदी लोग थे, उनकी मनः स्थिति को स्टडी करके उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया, जो ये किताब का नाम है। तो इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि हमारे जीवन का एक मकसद जरूर होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, व्हाई वी आर रनिंग फैमिली, व्हाई, हाउ इज आवर हेल्थ। तो ये विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन का एक मकसद उस दौरान निकाला, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत साल जिए, और उन्होंने ये किताब फिर बाद में लिखी।
तो आज के दिन हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही है, इतनी खराब नहीं है जितनी इस विक्टर फ्रैंकल के साथ में थी, लेकिन आज हमारी भी कोई वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार जैसे से कम सिचुएशन नहीं है। तो उससे हमको यही लेना है कि इस सिचुएशन में हम क्या आगे कर सकते हैं। तो ये एक मैं पढ़ रहा था, इसके बाद में फिर मैंने कुछ अच्छे स्पीकर्स लोगों की बातें सुननी चालू की, कुछ नेगेटिव भी बोल लोगों के सुननी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बात करते हैं तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, फिर दूसरे चैनल में या दूसरे किसी स्पीकर की बात सुनने लगता हूँ। 3-4 लोगों ने जो अच्छी बातें मुझे लगी वो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वी विल नॉट टॉक नेगेटिव। तो एक स्पीकर जो बहुत अच्छे जाने माने स्पीकर हैं, बहुत फेमस हैं, उन्होंने एक बात बताई कि हमारे जो हिंदुस्तान है उसका एक पिरामिड बताया उन्होंने, कि हमारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का एक पिरामिड पेश किया कि 130 करोड़ जो जनता है उसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड में कौन लोग हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में ये जो हमारे गरीब लोग जो रोज अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, 100-200 रुपया कमाते हैं, ये करीब 10 से 15 करोड़ लोग हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं, हमारे 100 करोड़ 135 करोड़ जनता में। तो आज की सिचुएशन में दे विल बी द मोस्ट सफरर आउट ऑफ दिस 130 करोड़ पीपल। तो ये लोग सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को मदद करने के लिए। बहुत सारे एनजीओ भी अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। आप में से भी कुछ लोग इनकी जिस तरह से भी हो सकता है मदद कर रहे होंगे। लेकिन जो टिप ऑफ द पिरामिड के लोग हैं वो कम सफरर है, वो भी सफरर हैं, उनको घर में रहना पड़ रहा है, घर में एक लॉक जैसे रहना पड़ रहा है, बट मोस्ट सफरर जो लोग हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे पिरामिड की बात करी जो हमारे ट्रेड का पिरामिड, जो हमारे बिजनेस का पिरामिड है। तो ये पिरामिड में उन्होंने ये बताया कि टिप ऑफ द पिरामिड के लोग, इस पिरामिड में जैसे अगर हम हमारी टेक्सटाइल की सप्लाई चेन का एक पिरामिड बनाते हैं, तो टिप पर कौन आते हैं? टिप ऑफ द पिरामिड पे वो कंपनी आती है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास 3000, 4000, 5000 लेबर हैं, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और वो सिर्फ एक B2B जॉब टाइप का काम करके देते हैं या किसी को बना करके कुछ देते हैं। तो उनके हिसाब से या मेरे भी पर्सनली हिसाब से these companies will be most sufferer। इसके बाद में जो सेकंड पिरामिड में उससे नीचे की कंडीशन आती है, वो ब्रांड कम मैन्युफैक्चरर जो लोग हैं वो सफर करने वाले हैं, और उसके बाद में हमारे ट्रेड के लोग सफर करने वाले हैं, एंड सबसे कम जो सफर करेंगे, ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारे सप्लाई चेन के सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, छोटे रिटेलर्स, खास करके छोटे रिटेलर, मैं बड़े रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ और कई चेन रिटेलर्स जो हैं वो ज्यादा सफर करने वाले हैं, क्योंकि उनकी रेंट की दुकानें हैं, उनके पास में 1200, 1300, 1400 लोग काम करते हैं। लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के ज्यादा लोग, करीब 10 से 11 लाख जो छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे मतलब 10 करोड़ तक का बिजनेस करने वाले, वो कंपैरेटिवली कम सफर करेंगे, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में खुद की जगह, खुद की दुकान है, और है भी तो बहुत कम रेंट है, और या फिर उनके पास में 10, 15, 20 लोगों की उनको सैलरी देनी है। तो मैं कल हम हमारे 3-4 अलग अलग रिटेल की हम लोगों ने इस तरह से जूम मीटिंग की थी। कल गारमेंट के 700 लोगों के साथ में हमारी जूम मीटिंग थी। उसके एक दिन पहले टेक्सटाइल्स के 800 लोगों के साथ में जूम मीटिंग थी रिटेलरों से। तो उनको भी मैंने ये बात बताई थी। तो उसमें से कई लोगों ने इसको एग्री भी किया और कई लोगों ने नहीं भी एग्री किया, क्योंकि बोले हम तो सफर कर ही रहे हैं। तो डेफिनेटली वो भी सफर कर रहे हैं, सभी लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो कम सफर करेंगे और जल्दी उभर करके आ जाएंगे। दूसरा, जो आज हम जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, मेरे ध्यान से हम भी सप्लाई चेन के बॉटम के पिरामिड से थोड़े ऊपर आते हैं। तो कंपेयर टू जो हमारे सप्लायर हैं, जो आप लोगों के सप्लायर हैं, जिनके पास में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, या उससे भी एक ऊपर के जो सप्लायर हैं, उनसे हम लोग, एक हमारे लिए थोड़ी राहत की बात है कि कम सफर करने वाले हैं। मुझे प्लीज गलत मत समझिए, सफर नहीं करेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सफर तो सभी कोई करने वाला है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफर नहीं करेगा। तो आप लोग भी सफर करने वाले हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हम कम सफर करेंगे। तो हमारे लिए अभी आज की सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
तो फिर एक और किताब का मैं जिक्र करूंगा जो मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती है और आज की सिचुएशन में उसमें से एक चैप्टर थोड़ा आज रिलेट करता है, और वो किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मेरी बहुत प्रिय किताब है ये। अगर किसी को किताब पढ़ने का शौक नहीं है और एक ही किताब अपनी लाइफ में पढ़ना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप पढ़िए। हिंदी या कम से कम भी 25-30 लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुई है। तो इसमें एक जो चैप्टर है वो आज की सिचुएशन से रिलेट करता है, और वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उन्होंने एक चैप्टर दिया हुआ है कि हाउ वी मैनेज आवर टाइम रोजमर्रा की जिंदगी में। तो उसको इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ढंग से 4 क्वाड्रेंट के अंदर बताने की कोशिश की है। तो जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मैं 2 मिनट में एक साधारण रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आर दीज 4 क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 जो है, दैट इज अ मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, लाइक क्राइसिस वाली एक्टिविटी, जिसमें नॉर्मली हम लोग हमेशा रहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में रोज काम, जो आज किसको माल भेजना है, आज आ गया इसको क्या करूं, आज इसको पेमेंट करना है, क्राइसिस सिचुएशन। तो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये वाले कॉलम में जाती है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है, कॉलम जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बट नॉट अर्जेंट। ये जो एक्टिविटी है इसमें मोस्ट ऑफ द लोग, इंक्लूडिंग आवर कंपनी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये जो कॉलम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको हमारे फ्यूचर को प्लान करने वाला कॉलम है। हमारे हेल्थ के फ्यूचर को प्लान करना है, हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्लान करना है, हमारे बिजनेस के फ्यूचर को प्लान करना है। तो ये प्लानिंग वाला कॉलम है, और इसका रिजल्ट चूंकि जल्दी नहीं मिलता, हम अगर ये कॉलम के अंदर 2 दिन निकालेंगे या 4 घंटा निकालेंगे तो अभी का अभी हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी का अभी तो हमको क्वाड्रेंट 1 में रहने से फायदा मिलेगा। जो हमारी क्राइसिस वाली एक्टिविटी करने से हमको तुरंत फायदा मिलता है। लाइक अगर हम बीमार हो गए तो वो कॉर्टिजोन की गोली ले लो, तुरंत फायदा होगा। लेकिन कॉर्टिजोन की गोली लेनी ही ना पड़े, उसके लिए हमको क्या करना है, दैट इज क्वाड्रेंट 2। हमारे बिजनेस को किस तरह से और मजबूत बनाना है, उसके लिए प्लानिंग करना है, दैट इज क्वाड्रेंट 2। और क्वाड्रेंट 3 और 4 ज्यादा रिलेट नहीं करता आज के सिचुएशन से। मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेंट 3 इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटी, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। लाइक हम बात कर रहे हैं, अभी किसी का फोन आ गया तो वो उसको ले लेता है, जबकि ये मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 4th इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जो इंपॉर्टेंट तो वो तो हमारे लिए ऐसे भी लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिलती है। वो क्वाड्रेंट उन लोगों के लिए है जिसके पास पूरे दिन में 1 घंटे का काम है, जो सिर्फ शेयर का बिजनेस करते हैं या और कुछ करते हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है। तो वी आर, तो हमारी ज्यादा टाइम जो है वो क्वाड्रेंट 1 में जाता है। लेकिन आज हमको मौका मिला है, ये हमको और 20 दिन मिले हैं, 25 दिन ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, जब हम क्वाड्रेंट 2 में रह करके हमारे फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, हमारे फैमिली के फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को प्लान कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस के फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, जो कि एक नए तरीके से होने वाला है, जो आज के तरीके से नहीं चलने वाला है। सो दिस इज अ राइट टाइम टू प्लान आवर फ्यूचर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको पॉजिटिव रहना है, फिर उसके बाद में अच्छी चीजें देखनी है, और फिर ये फ्यूचर प्लान करना है। अभी मैं आप अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हमारे लिए क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो आपका जो बिजनेस है उसमें हमको आने वाले समय में तकलीफ होगी, और उसको हम छोटे मोटे रूप से किस तरह से उसको पार कर पाएंगे। देखिए, तकलीफें तो सबको डेफिनेटली होने वाली है। तो लेकिन एक राहत की बात क्या है कि देखिए, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा आप लोगों से भी खरीदता हूँ और बड़ी कंपनियों से भी खरीदते हैं। लेकिन हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट ये होने वाला है, आने वाले समय में आप लोगों की जरूरत थोड़ी मेरे ख्याल से बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर, गारमेंट मैन्युफैक्चरर अभी बड़ी बड़ी बीम का माल नहीं खरीदने वाला है। वो छोटे छोटे बीम का माल खरीदेगा, जो आप लोगों की एक्सपर्टीज है, 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर माल खरीदेगा। और दूसरी बात, फास्ट फैशन में जो, देखिए अपना जो आपका एसोसिएशन है, मुझे आप लोगों में से कई लोगों से हम कपड़ा भी खरीदते हैं, और मुझे आपका अप्रोच और आप लोगों का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप लोग फैशन के नजदीक रहते हैं। जो बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड हैं, वो 1 साल पहले अपने फैशन को प्लान करते हैं, अपने बिजनेस को प्लान करते हैं, जबकि आप एक फैसिलिटेटर हैं
कि जो हर 2 महीने में नए प्रोडक्ट, नई डिजाइन ला करके देते हैं और 200-300 मीटर की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो आप लोगों का रोल मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में, या आफ्टर कोरोना आपकी जरूरत और ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारी जैसी कंपनी भी हम बहुत सारा माल डायरेक्ट कंपनियों से लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको आप जैसे लोगों से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि हम 1500 मीटर एक डिजाइन का, एक क्वालिटी का ले लें। हमको 300 मीटर 400 मीटर चाहिएगा, वो आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता। सो दिस इज एक सिल्वर लाइनिंग आफ्टर कोरोना फॉर यू ऑल, ऐसा मेरा एक सोचना है। मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट ये एक हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। दूसरी, देखिए मैंने एक चीज देखा है कि अपना जो वर्किंग है, ये मेरा सजेशन है, प्लीज आप लोग उसको गलत भी ना समझे, और अगर अपना सके तो अपनाएं, कि हमारे बिजनेस में, खास करके आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा क्रेडिट पीरियड चलता है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप क्रेडिट जरूर दीजिए। देखिए आपको क्रेडिट देना जरूरी है बिकॉज यू आर फैसिलिटेटर, लेकिन हमको एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं कि कपड़े का बिजनेस करना है, बैंकिंग बिजनेस नहीं करना है। 6 महीने की उधार नहीं देनी है। और आने वाले समय में तो हमारे जो आने वाले समय में हमको जो प्लान करना है, आप एक रीजनेबल लिमिट तक उधार दीजिए, और बाकी फिर आपस में बैठ करके जो हमारे कस्टमर हैं या जो सप्लायर हैं, सबके साथ मिल करके हमको ये सिचुएशन को पार करना होगा। तो उनको जब समझाएंगे तो उनको भी आगे, देखिए मैं बहुत सारे, कल हमारे रिटेल के अंदर हम लोग, मैं कम से कम 3000 रिटेलर से ये जूम मीटिंग अभी कर चुका हूँ, और उनके मैंने बातें भी सुनी है। तो एक बहुत कठोर सत्य उन्होंने बोला है, जो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो फैक्ट है कि 1-1.5-2 महीना ये लोग कोई माल खरीदने वाले नहीं है, बिकॉज दे हैव ह्यूज इन्वेंटरी, और उनके पास में 1-1.5 महीने के लिए समर जो है उनका करीब करीब निकल जाएगा, जबकि हमारे पास में समर के प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो ये सफरिंग को तो हमको सबको झेलना ही होगा। तो बिल्कुल नहीं लेंगे इसका मतलब, कुछ कुछ जरूर लेंगे, लेकिन उनको एक बात ये समझ में आ रही है कि हम भी अभी रोटेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करके, उनको आपस में बैठ करके बातचीत करके थोड़ा बिजनेस साइकिल को फास्टर कर सकते हैं। तो इससे हमको डेफिनेटली ये साल बहुत मार पड़ने वाली है, लेकिन ये जो आपदा पूरी दुनिया पर आई है उसमें सबको नुकसान लगने वाला है, छोटे से लेके बड़े, हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से नुकसान लगने वाला है। बड़ी कंपनी को ज्यादा लगने वाला है। हम लोग हमारे डीलरों को भी बता रहे थे, हमारे कंपनी के लोग थोड़े डिमोरलाइज हुए थे, उनको भी बता रहे थे कि अच्छा खासा नुकसान लगने वाला है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंडिचर चालू है और इनकम जीरो है। तो इसको बहुत प्लेजरली एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद में फ्यूचर प्लान करके कि ये जो नुकसान हमको 3-4 या 5 महीने लग सकता है, वो आगे की वर्किंग इस तरह से करें कि कुछ हद तक इसको कंपनसेट कर दें। देखिए कल कुछ रिटेलरों, जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, अच्छे रिटेलर्स हैं, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। जीतू भाई जेड ब्लू वाले भी कल आए थे, उनका 350-400 करोड़ रुपए का सेल है, एंड उनके पास भी 1500 लोग काम कर रहे हैं, और वो बताया कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान लगने वाला है, बट देन ऑल्सो ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो उन्होंने बताया कि भाई हम मिलजुल करके काम को करेंगे। और एक अच्छी बात उन्होंने बताई, क्योंकि कुछ रिटेलर्स का ऐसा सोचना था कि हमारे जो स्टाफ हैं उनको हम सैलरी कम देवे या किसी को छोड़ देवे, बट 3-4-5 लोगों ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए जिन लोगों की वजह से हम लोग आज तक इतना पैसा कमाते आ रहे हैं, जो हमारी बैकबोन है, तो उनके ऊपर ही हम पैसा काट करके हमारी लाइफ थोड़ी बनने वाली है। तो उनका भी सजेशन था, पर्सनली मेरा भी सजेशन है। हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए की महीने की सैलरी का बिल है, लेकिन जहां तक हो सके हम विन विन सिचुएशन में सबसे बातचीत करके, आप लोगों के पास में 20 लोग होंगे, 25 होंगे, 15 होंगे, तो उनके साथ में मिलकर के एक पॉजिटिव सिचुएशन से सोल्यूशन निकालिए। सैलरी काटना आई डोंट थिंक इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो मिलकर के, और उनको बल्कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेवे इस वक्त, और उनसे और एक ज्यादा उम्मीद करें, उनके वर्क के लोड को और बढ़ावें। तो हो सकता है कि वो हमको ज्यादा जो लॉस होगा उसमें कमा करके देंगे, क्योंकि काम करने वाले वही लोग हैं। तो इस तरह की बातें कल जो रिटेल की 2-3 दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कई रिटेलर्स ने सजेस्ट की। फिर कई लोगों ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए हम लोग माल तो थोड़ा कम खरीदेंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम पेमेंट करते रहें।
हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करें, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पेमेंट करेगा, हम हमारे सप्लायर को पेमेंट करते रहें। उसी तरह से आपको जो आपके बायर्स रहेंगे वो अभी पेमेंट करने में दिक्कतें हो सकती है उनको, क्योंकि उनकी भी गाड़ी जाम है, उनका भी चक्का जाम हो गया है। वैसे ही आपके सप्लायरों की भी तकलीफ है। तो हमको मिल करके एक दूसरे को अपना हाथ से हाथ पकड़ करके सॉल्यूशन ढूंढना है। हमको अपनी प्रॉब्लम तो देखनी है, देखिए हमारे बिजनेस की, अपने फर्म की प्रॉब्लम पहले देखनी है, लेकिन सामने वाले के भी प्रॉब्लम देख करके एक विन विन सॉल्यूशन निकालना है। तो हम मिल करके ये सिचुएशन को डेफिनेटली पार कर लेंगे। तो यही मेरे कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है पॉजिटिव रहना है। फिर मुझे कई लोगों ने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से भी क्या होगा, कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो काम तो यही करना है कि जैसे ही खुलेगा तो हमको सबसे पहले डायलॉग बंद नहीं करना, और हमारे सप्लायर हो चाहे हमारे बायर हो, सबके ऊपर फेथ रखना है। तो अब आपके कई क्वेश्चंस इन्होंने मुझे भेजे हैं, आप मुझे एक एक करके पूछिए। मैं उसमें भी कुछ और बातें मैं कहना चाह रहा था लेकिन उसके दौरान कह दूंगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और सब मिलकर के इस सिचुएशन को फेस करेंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आप लोग घर से प्लीज बाहर नहीं रहिए, तो हम लोग अपने देश की आज के दिन सेवा सिर्फ ये तरीके से कर सकते हैं कि घर में बैठ करके क्वालिटी टाइम निकालें। तो अब सब लोग ये अपने बातचीत में यहाँ पर आए, और फिर से मैं रजत भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का। और मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगे तो उसे अपनाइए, नहीं तो फिर यहीं से डिलीट करके कम से कम अभी अपने आप को संभाल के रखें। सो थैंक यू सो मच। अभी रजत भाई आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर देम। बोलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन रमेश जी ये है, एज अ ट्रेडिंग कंपनी, जैसे कि इस माहौल में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले हैं, एज अ ट्रेडिंग कंपनी व्हाट शुड बी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट एनी कंपनी शुड टेक as soon as the lockdown is open? It could be how to arrange your office, how to do business, how to purchase, how to sell. Everything comes under this question. नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सभी के माइंड में ये क्वेश्चन है। अभी देखिए एक बात चल रही थी कि 20 तारीख से फैक्ट्रियों को खोलने की बात है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने परमिशन नहीं दिया है। लेकिन परमिशन देने के बावजूद भी फैक्ट्री के लिए बहुत सारे उनके नियम है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, वो सभी के पास होंगे, काफी व्हाट्सएप में वो घूम रहे हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिंग के बिजनेस में इतने स्ट्रिक्ट कोई गाइडलाइन नहीं रहने वाली है। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो भी लोग काम पर आएंगे 10, 15, 20 लोग, उनका हेल्थ तो सबसे पहले चेकअप करवाना है। फिर उसके बाद में अपने तरीके से अपने ऑफिस गोडाउन्स को जिस तरह से भी सैनिटाइज करना है वो कर लीजिए। और ये जो गवर्नमेंट ने हमको बताई है कोरोना से मुतालिक, वो बातें सब काफी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है और बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो चीजें तो हमको करनी ही करनी है। हमारे खुद का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। लेकिन एज ए बिजनेस मेरे ख्याल से सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हर व्यक्ति पीड़ा में है, तो हमको हमारी पीड़ा के साथ साथ हमारे सप्लाई चेन के पार्टनर्स की पीड़ा को भी समझ करके डायलॉग करना है। डायलॉग बंद नहीं करना है, और हमको फेथ रखना है हमारे सप्लायर पे भी, और सबसे ज्यादा हमारे बायर के ऊपर। हो सकता है कि हमारे 300, 400, 500 अगर आपके पास में खाते हैं तो 10-5% लोग इस चीज का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको भी रोजमर्रा में बिजनेस करना है, कोई एक टाइम की बात नहीं है। तो सबसे पहला तो हमको एक डायलॉग आपस में बंद नहीं करना है, ज्यादा डायलॉग करना है, और एक दूसरे की सिचुएशन को, डिफिकल्टी को समझते हुए काम को आगे बढ़ाना है। और एक दूसरे का हाथ मिला करके अगर चलेंगे तो ये सिचुएशन को पार करेंगे। तो सबसे पहला काम हमको डायलॉग बंद नहीं करना है, कम्युनिकेशन करना है और फेथ रखना है एक दूसरे पर। Question number 2, looking at the current scenario, there's a reason to believe that Maharashtra opens after lockdown after most of the other states. What should be the plan of action as a Mumbai-based trader? हाँ, तो ये तो पक्की बात है कि महाराष्ट्र में, खास करके बॉम्बे में थोड़ा और ज्यादा दिन रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो और भी जगह पर ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो, पहली बार जब मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया था तो एक नर्वसनेस आई थी। लेकिन सेकंड टाइम जब मोदी जी टीवी पर आए थे तो पर्सनली मैं और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई थी,
वो मन में ये सोच रहे थे कि कहीं ये कल खोल ना दे, क्योंकि हमको इतने सारे लोग फिर आएंगे, फिर से कुछ होगा। तो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि 21 दिन का और लॉकडाउन हो गया है, तो पहली बार जितनी पीड़ा हुई थी उतनी पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि ये 21 दिन और लॉकडाउन करने से जो कुछ भी तकलीफें सहनी है, एक कंटिन्यूटी में हो जाए और इसका पूरा सोल्यूशन निकल जाए, उसके बाद में सब लोग बाहर आके काम करें, तो हम एक दिल खोल करके कर सकते हैं। और ये बीच में ही हमने खोल दिया, और अगर बाई चांस कुछ फिर से ऐसी नौबत आई तो वो और भी ज्यादा कठिन होगा। तो डेफिनेटली अपने महाराष्ट्र में थोड़ा लेट होने वाला है, और जितना लेट होगा उसके हिसाब से हमको, जो मैंने अभी काफी चीजें कवर कर दी कि अपने आप के बिजनेस को हमको प्लान करना है। अपने आपके बिजनेस में आप लोग ये प्लान कर सकते हैं कि हमारे पास में स्टॉक क्या है, आजकल सब कंप्यूटर में स्टॉक रहता है, आपके पास घर में होगा। या आप ये प्लान कर सकते हैं कि हमको क्या चीज खरीदना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं बनानी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं इस वक्त में। Question number 3. How will the current disruption of payment cycle affect most of us, especially traders? क्योंकि सबसे ज्यादा लागत हम ट्रेडर लोगों की लगती है इंडस्ट्री के ऊपर। Delay from our clients and our due payments to our supplier. Obviously, payment आएगा नहीं तो देना भी थोड़ा भारी पड़ता है, which will this will get delayed also to a certain extent. Is there any quick fix solution which you think should be employed in the interim period? I don't think there is a quick fix solution, क्योंकि everybody is in problem. कल जैसे मैं अभी ये 3000 रिटेलरों से हमने डायलॉग किया है, कई लोग बोलने का मौका भी उनको मिला था। सो उनका सोचना है कि हम 3 महीने कोई माल ही नहीं खरीदेंगे, और पेमेंट भी हम देंगे जरूर, लेकिन तो ये साइकिल जो है नीचे से ऊपर ही आने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने सप्लायर, अपने बायर को पेमेंट करेंगे। वो बायर अगर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है छोटा, वो आपको पेमेंट करेगा, और आप फिर अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे। तो ये तो एक पूरा साइकिल टाइम है जो सबका डिस्टर्ब होने वाला है, और ये सच्चाई को तो हम टाल नहीं सकते। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि हम, जो मैंने पहले भी बताया, कि अपना आपस में मिल करके एक विन विन सोल्यूशन निकालना होगा। सबकी प्रॉब्लम अपने को समझनी होगी, आपके जो बायर्स हैं उनकी प्रॉब्लम समझनी होगी, बायर को आपकी प्रॉब्लम समझनी होगी, और मिल करके थोड़ा डिले तो होने ही वाला है। और देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज कंपनी के अंदर बड़ा लॉस लगने वाला है, तो ये लॉस की फंडिंग को प्लान कर रहे हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि कैश फ्लो बिल्कुल बिगड़ जाने वाला है। तो अपने अपने तरीके से जो कुछ भी हमको ये बिजनेस में फंड कम होने वाला है, या लॉस लगने वाला है, या सब ये हमारा जो साइकिल रुक जाने वाला है, उसके लिए एक अपने तरीके से प्लान करना है हमको कि हम ये फंडिंग को कैसे करेंगे, और एक दूसरे से मिल करके सहयोग रख के विन विन सिचुएशन करके सोल्यूशन निकालना है। Considering that currently there is no incoming payment and our expenditures like rent, interest remains as it is, what steps can we as trading companies take to tackle the situation? ये तो मैंने जो बताया वही है कि लॉस सभी को लगने वाला है, और आई थिंक दिस क्वेश्चन का आंसर तो इसमें आ ही गया। तो इसके अंदर देखिए, जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनको हो सकता है कि अपने बोरिंग्स बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज इनकम तो जीरो रहने वाली है। तो अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां कोई है आप में से, अगर कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बोरिंग अगर ना बढ़ानी पड़े और उसी में मैनेज होता है, तो इट इज ए बहुत आइडियल सिचुएशन। और मैं हमेशा सबको कह रहा था, जैसे ये कोरोना में जो जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो बाहर जल्दी नहीं निकल के आ पाते, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसने शुरू से ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा है, वो जल्दी बाहर निकल के आ जाते हैं, जल्दी ठीक भी हो जाते हैं अफेक्टेड होने के बावजूद। उसी तरह से हमारे में से बहुत सारे लोगों ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत बना के रखा हुआ है। जिन्होंने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत रखा है, वो थोड़ी जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे। और जिस भी बिजनेस में, जिस भी कंपनी में, इंक्लूडिंग सियाराम कंपनी में या किसी भी कंपनी में, फाइनेंशियल अनडिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरा भी नहीं था, उसमें निकलने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा। और उससे हमको ये है कि हम अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाएं, और ये मिलजुल करके ही लाना होगा। तो हम, जैसे अभी आप में से कई लोगों से हम लोग कपड़ा खरीदते हैं,
तो हमारा सबसे पहले दायित्व होगा कि हम आपका पेमेंट जितनी लेट तो होगा, लेकिन कैसे जल्दी कर सकें। वैसे ही हम हमारे जो जिनको हम बेचते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कोशिश करिए, लेकिन उनकी चेयर पे बैठ करके सोचना होगा, वो कहेंगे कि हमको भी आगे से नहीं आ रहा है, तो मिलजुल करके कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एक मौका है जब हम थोड़ा आगे जाकर के ठीक कर लें। अनवांटेड दुनिया भर का जो स्टॉक रहता है वो किसी भी तरह से हम कम कर दें, प्लानिंग करके थोड़ा माल बनाएं। आप में से तो बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको तो मैं ज्यादा क्या बताऊं, लेकिन दूसरी बहुत सारी कंपनियां जो करती है वो अच्छा इतना बहुत इन्वेंट्री रखते हैं। सो आप लोग तो वैसे ही और लोगों से बेटर है, लेकिन फिर भी जो गुंजाइश लगती है इंडिपेंडेंटली वो करनी चाहिए और मिल करके वही हैंड होल्डिंग करके काम को बढ़ाना चाहिए। What do you recommend on giving additional credit to clients who already have a delayed payment cycle and post lockdown might need additional goods on credit? अब इनको क्रेडिट पे देवे कि फिर पुरानी क्रेडिट तो वैसे ही लंबी बाकी है, नया माल भी क्रेडिट पे देना चाहिए ट्रेड को कि फिर वो पहले पैसा देके लेके जाओ, ऐसा करना चाहिए? क्रेडिट को देखिए अभी एकदम तुरंत तो जैसे कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन आपने पूछा होने वाला नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं कि पेमेंट साइकिल को थोड़ा कैसे और बेटर करें, क्योंकि आज के दिन तो पेमेंट मांगने भी आप जाएंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं आएगा। डेफिनेटली सब सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को और वो भी अपने नीचे से पेमेंट लेने की कोशिश करेंगे। माल हो सकता है कि सेल कम हो, बहुत कम होगा, 2-3 महीने तो ये सीजन तो 3-4 महीने मेरे को लगता है कि माल इतना सेल होने वाला नहीं है, तो ये रियलिटी को तो हमको एक्सेप्ट करना ही है। तो हमको कोशिश यही करनी है कि हमारे पेमेंट साइकिल को हम लोग थोड़ा बेटर कर ले, जिसमें भी टाइम लगने वाली है, लेकिन जब एक नॉर्मल वक्त आ जाएगा 4 महीने के बाद, तब हमारे ये साइकिल को हम लोग और थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि एकदम आंख बंद करके जो उधार देने का कोई सिस्टम है किसी का, अगर उस पर थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और 3-4-5-6 महीने में आप ये समझिए कि एक ये जो साल है पूरा, ये साल एक कंसोलिडेशन पीरियड में हमारा निकल सकता है, और जो स्ट्रॉन्गर रूप में उभर करके आएंगे वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। कल किसी ने बहुत अच्छी बात की, हमारे रिटेलर भाइयों में से कल किसी ने इतनी अच्छी बातें की कि आप ये सोचो कि ये साल हमको कमाई कुछ मिलने वाली नहीं है, और ये साल जो कमाई नहीं मिलेगी वो जो कुछ भी हमारा कॉस्ट लगी या पैसा लगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने देश के लिए लग गए। तो अगर हम कंसोलिडेट भी कर पाए ये साल जो है हमारे बिजनेस को, हम सेम टर्नओवर बॉटम टॉप लाइन नहीं ला पाए, या 8 महीने का हमको टाइम मिलेगा तो उसमें हम हमारे बॉटम लाइन को कंट्रोल कर पाए, लेकिन सबसे मेन हमारे कैश फ्लो को हम अगर मैनेज कर पाए अच्छे से। कैश फ्लो को मैनेज करने में यही है कि आप अपने एक बार टर्नओवर को थोड़ा कम करिए, तो हमारे फाइनेंस के अंदर रोटेशन थोड़ा बेटर होने लग जाएगा। मेरे ख्याल से सभी कंपनियां ये सोच रही है, सभी ट्रेडर ये सोच रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग के बजाय बिजनेस को थोड़ा कंट्रोल में करके करिए 6 महीने के बाद, फिर तो उसके बाद में हमारा 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। आज बाकी सब जगह से हम लोग डेफिनेटली बेटर कंडीशन में है, क्योंकि हमारा खुद का कंजम्पशन है, और दूसरा इतने लोगों को अभी हम सुन रहे हैं, तो ये इंपोर्ट से खास करके चाइना से जो माल आ रहा है, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसमें हम थोड़ी कमी लाएंगे, या क्या होता है देख करके तो हो सकता है हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी निकले। अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। लॉन्ग टर्म में हमको बेटर फायदा हो सकता है। हमारे फाइनेंस सिस्टम को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को थोड़ा मेंटेन करना है। तो अभी क्रेडिट तो आपको देना या नहीं देना अपने हाथ में नहीं है, वो सप्लाई पेमेंट करने वाला थोड़ा डिले कर सकता है। देखिए जानबूझ करके तो कोई डिले नहीं करेगा। कल हमारे रिटेलर भाइयों में से कई लोगों ने ये भी बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे सप्लायर को जो हो सकता है हम थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना चालू करें, इस सिचुएशन में भी चालू करें। सो पॉजिटिव लोग भी बहुत सारे हैं, तो हम उनसे बात करके कुछ कुछ पेमेंट हमारे आएंगे भी, और उसी तरह से आप अपने सप्लायर को करिए और एक दूसरे का वही हाथ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो आपके हिसाब से एसोसिएशन को कोई स्टैंड लेना चाहिए क्रेडिट के ऊपर कि इंडिविजुअली करना चाहिए? नहीं, एसोसिएशन का देखिए इंडिविजुअली ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जो है, क्योंकि एसोसिएशन का हम फायदा ले सकते हैं। एसोसिएशन का फायदा जो लोग गलत एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन का, वो तो आपको पता चल जाएगा। जब बिजनेस डीलिंग में आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये 300-200 लोगों से हमारी डीलिंग हो रही है,
तो ये कौन 10 लोग हैं जो गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या हमको गलत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूर अपने एसोसिएशन से कोई ना कोई आप अभी एक फॉर्मेट बना सकते हैं और ऐसे लोगों को एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक सोचना है कि बहुत सारे लोग वो खुद भी मिल करके काम करना चाहेंगे। कुछ परसेंटेज लोग हो सकते हैं जिसमें एसोसिएशन की मदद काम आ सकती है। अभी सब ट्रेडर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपने आगे भी जिक्र किया कि बिजनेस थोड़ा कम तो होगा ही है साल में। हाँ, तो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट डू यू थिंक विल बी द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन बिजनेस व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 30 से 35% बिजनेस तो डेफिनेटली कम हो जाएगा इस साल। और अगर अच्छे पीरियड जब आएंगे, देखिए एक चीज अच्छी हो रही है कि ये 2 महीना शादियों का पीरियड था और वो सब शादियां जो है आगे शिफ्ट हो गई है। तो शादियां तो होगी, अभी अगर होती भी तो सेल नहीं होने वाला था। तो हमारा फेस्टिवल सीजन जब दिवाली के पास में, वैसे भी 2 महीना बारिश के सीजन आ जाएंगे तो सेल कम रहता है। लेकिन उसके बाद में जो पीरियड होगा, तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि एक तो फेस्टिवल भी होगा और शादियां जो अभी भी है वो भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो अच्छा एक सीजन हमको मिल सकता है 8 महीने का, 7 महीने का। तो वो 7-8 महीने के अंदर हमको प्रॉपरली हमारे फाइनेंस को मैनेज करते हुए फिर भी मुझे लगता है 30-35% का तो डाउनफॉल आ ही सकता है। As a garment brand owner yourself, what do you anticipate as a time frame for retail revival? ये तो जो मैंने बताया, अब रिटेलरों से, मेरे 3000 रिटेलर से हमने अभी जूम मीटिंग किया है लास्ट 4 दिन में। हाँ जी। तो उनका भी ये कहना था कि हम लोग 1-1.5 महीने तक परचेज कम करेंगे और पहले हमारी कंसोलिडेट करेंगे। हमारे पास में बहुत सारा माल आया हुआ है, पाइपलाइन में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, तो हम उसको सेल करेंगे और हम कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चलेंगे। और सभी पॉजिटिव हैं और 1-1.5 महीने के बाद में वो सब काम करना चाहते हैं, सब काम बढ़ाना चाहते हैं। और छोटे रिटेलर खास करके उनका ये भी सोचना था कि हमारे रिलेशनशिप को हम और मजबूत करेंगे। तो कई लोगों का ऐसा था कि ऑनलाइन बढ़ेगा, तो ऑनलाइन भी बढ़ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर काम आगे जाके ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ रिटेलरों का सोचना और मानना था। तो टाइम फ्रेम तो मतलब लग सकता है, थोड़ा लग सकता है। हाँ। What do you expect from our government? आप कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बॉडीज के या तो हेड रह चुके हैं या इन्वॉल्व है, तो आपको लगता है कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कुछ रियायत देगी? कोई इसके अंदर लुकिंग कर रही है, चाहे वो गारमेंट लेवल पे हो, चाहे वो फैब्रिक प्रोडक्शन लेवल पे हो, कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट के फायदे, कोई टैक्सेस का फायदा, ऐसा कोई उम्मीद आपको कहीं पे दिख रही है? अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है, सभी लोगों ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया है अलग अलग तरीके से। सप्लाई चेन के शुरू से लेके आखिर तक सभी लोगों के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेशन किए हैं और अपनी तरफ से वो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट पे हमको 100% डिपेंड नहीं रहना है। जो हमको मिल जाएगा डेफिनेटली मिलेगा, कुछ ना कुछ। सारे एसोसिएशंस कोशिश कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और हमारे दिल की बहुत इच्छा है कि गवर्नमेंट करे, और वो भी करेगी, डेफिनेटली करेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट कहाँ से करेगी? हमारे से ही टैक्स लेकर के करने वाली है, अभी टैक्स की आवक ही बंद है। तो लेकिन हमको सेल्फ हेल्प के ऊपर ज्यादा मदद करनी है, और जो गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट मिल जाएगा उसको हमको बोनस समझना चाहिए, और हमारी खुद की हेल्प करके हम जो ला पाएंगे वो पक्का काम होने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे सारे एसोसिएशन, मैं कई लोगों को सुनता हूँ, बात भी कर रहे हैं, और वो अपने अपने ढंग से बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को कर रही है, और गवर्नमेंट अपने तरीके से वादे भी कर रही है कि हम जरूर इसको सोचेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। डेफिनेटली कुछ तो सहायता गवर्नमेंट से मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारा सोचना है, considering that COVID-19 all businesses will have a major turn down. How can we have a win-win situation in the entire business chain, that is from mills to traders to garment manufacturers? Should not all stakeholders have a vision to start fresh and ensure better profitability to all? अपने गारमेंट इंडस्ट्री में खास करके देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन अ मेजर इशू इन द लास्ट 2-3 और 4 years. तो इसके लिए सबको मिलके क्या करना चाहिए? कोई एक इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, जहाँ पे मिल वाला भी हो, ट्रेडर भी हो, मैन्युफैक्चरर भी हो, रिटेलर भी हो,
और सब मिलके कोई एक प्रॉफिटेबिलिटी, एट द एंड ऑफ द डे धंधा करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। करेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री में है नहीं, इसलिए आज के दिन में मार खा रही है। तो इसके लिए कोई विजन होना चाहिए, कोई लीडर्स इंडस्ट्री के आपके जैसे होने चाहिए जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर बात करेंगे, और ये मौके पे काफी लोग एक दूसरे से बात कर भी रहे हैं और बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं जो आज तक पहले नहीं होती थी। तो जैसे एक कहावत है ना कि कभी घर में कोई पीड़ा आती है तो सब एक हो जाते हैं, उसी तरह से हमारा ये पूरा घर है, एक भारतवर्ष पूरा घर है, तो सब अभी एक होकर के बात तो कर रहे हैं डेफिनेटली। और सभी लोगों को ये लग रहा है, हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में खास करके बहुत सारे पीरियड में सेल पर कपड़ा बिकता है और एक पे एक फ्री या दो पर एक फ्री ऐसे चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उसको हमको कम करना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली कितना होने वाला है, सब मिल करके अगर करेंगे, सभी लोग करेंगे तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मिल सकता है। और अभी 3-4 महीने, 2-2.5 महीने का प्रोडक्शन भी नहीं होने वाला है। अगर कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन भी बंद है, तो वो बैलेंसिंग तो हो जाएगी, लेकिन चालू होने के बाद भी एकदम से डिमांड नहीं आने वाली है। तो इसलिए एक मौका है अच्छा, जब सब मिल करके अगर करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में हम थोड़ा लेकर के आए, कुछ बेनिफिट मिले। तो लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, और जो थोड़ी दिख रही है इन दिनों में जो हो रही है। नहीं, बस हम यही ऐसे एसोसिएशन चाहते थे कि कपड़े वाले में आपके जैसे स्टॉलवर्ड्स है, 5-6 बड़े फैब्रिक सप्लायर्स है, चाहे वो अरविंद मिल वाले हो, मतलब कोई बड़ी मिल वाले हो, आपके जैसे शूटिंग वाले हो, या कोई अच्छे बड़े ट्रेडर्स हो या मैन्युफैक्चरर्स हो, और एट द एंड जो बड़े रिटेलर्स है इंडिया के, ओवर एंड अबव द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये अगर मिलके एक प्लेटफॉर्म बना के, चाहे वो जूम मीटिंग हो, कुछ भी हो, क्योंकि अभी भी काफी दिन बंद रहने वाला है, तो कोई एक लीड लिया जाए तो काफी कुछ सुधरने की संभावना है, जैसे आपने बताया, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। हाँ, मेरे ख्याल से अभी क्या है कि थोड़े थोड़े लोग अपने अपने शेल में बैठे हुए हैं, उनको एक दूसरी चेयर पे बैठ करके सोचने का इतना आ नहीं रहा है चीजें। आज हम बात करेंगे तो हर व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली थोड़े दिन के बाद में जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब हम एक दूसरे से बात करेंगे तो दूसरे की चेयर पे बैठ के सोचना पड़ेगा, तब ये विन विन सिचुएशन बनेगी। आज हम लोगों ने भी जैसे अभी अपने रिटेलर भाइयों से बात की, तो वो सबसे पहले उनको अपने घर की प्रॉब्लम नजर आती है, जो स्वाभाविक भी है। तो लेकिन इसमें हमको दूसरे के घर की प्रॉब्लम को समझना होगा, और वो मिल करके करते हैं। तो और हमारी कई एसोसिएशन कोशिश कर रही है, और अपने तरीके से वो लोग मिल करके कोशिश कर भी रहे हैं कि भाई इसमें हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के लिए कुछ काम हो, उधार में ज्यादा माल नहीं बेचें, या सेल के पीरियड को थोड़ा कम करें, या पूरी दुकान में सेल नहीं लगावे, कुछ परसेंटेज पे सेल लगाएं। कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो देखिए जो कभी हो सकती है सक्सेसफुल। एक आइडियल मौका मिला है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, अगर सब लोग मौका मिला है फायदा लेंगे बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। जो अब हमारे जो भी ट्रेडर भाई है, ज्यादातर सब लोग जो मीडियम या छोटे गारमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं। जो हिसाब से हम फिलहाल देख रहे हैं कि धीरे धीरे लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में कॉर्पोरेट्स के तरफ बिजनेस बढ़ रहा है। तो एज एन एसोसिएशन आवर क्वेश्चन इज दैट शुड वी स्टार्ट लुकिंग टू डू मोर बिजनेस विद द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और वेयर वी आर वर्किंग विद स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स वी शुड पुट मोर एम्फेसिस ऑन दैट फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आज के सिचुएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, एक तो बहुत सही बात को हमको मानना पड़ेगा कि ये जो बड़े चैन हैं, तो वो सारे के सारे दे आर मैन्युफैक्चरर टू रिटेल में डायरेक्ट हैं, तो उनका सप्लाई चेन में लीकेजेस बहुत ज्यादा कम है, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन 2 मल्टीपल, और उससे भी कम में कोई कोई कर पा रहे हैं। और जबकि अपने जो आपके जो बायर्स हैं, या इवन सीआरएम जैसी कंपनी है, कोई भी 3 के मल्टीपल या 2.25 के मल्टीपल से नीचे काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज लीकेजेज आर वेरी वेरी हाई, इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सिचुएशन कोई आज की नहीं है, ये तो अपने हर जगह पे हो ही रही है, बट उसके बावजूद भी छोटे लोगों की जगह रहने वाली है, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े सप्लाई चेन की चीजें हैं, वहां पर फैशन नहीं मिलता है, वो 6 महीने 1 साल पुराना फैशन मिलता है, क्योंकि ये लोग 1 साल पुराना पहले से प्लान करते हैं। जबकि जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं, जबकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा पीरियड आने वाला है,
बिकॉज आप फैशन के ज्यादा नजदीक हैं। जो एक ये ज़ारा का मॉडल है फास्ट फैशन, आप लोग मेरे ख्याल से वो वाला काम कर रहे हैं। तो आपके जो बायर्स भी हैं वो 2 सीजन पे नहीं चलते हैं, वो लोग हर महीने में कपड़ा खरीदते हैं और हर महीने में गारमेंट बना के बेचते हैं। तो उनका भी धंधा चलने वाला है और ये बड़ी दुकानों का तो डेफिनेटली ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन में लीकेजेस नहीं है, इनएफिशिएंसी नहीं है, और वो 2 के मल्टीपल में भी कपड़ा बेच पा रहे हैं, गारमेंट बेच पा रहे हैं। सो ये तो एक सत्य बात है जिसको हमको एक्सेप्ट करके चलना होगा। तो ये तो पार्टली यू हैव टू है स्टार्ट, जिसकी सोच लंबी हो वो थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम करना चालू करे, उनके साथ अगर कर पाए, क्योंकि उनके सप्लाई चेन में उनके प्राइसिंग जो है वो मैच करना और कई चीजें हैं, अगर कर पाए तो अच्छा है, उनसे भी करिए, मिक्स रखना चाहिए, उसमें क्या है, उनसे भी करिए। और अपने जो आपके जो छोटे सप्लायर्स हैं, जो छोटे सप्लायर हैं, आपके जो बायर हैं छोटे, मेरे को लगता है कि वो भी कम इफेक्टेड होंगे, वो जल्दी निकल के आ जाएंगे क्योंकि काम कंट्रोल में है उनका। देखिए ट्रेडिंग के अंदर सबसे अच्छी एक बात क्या है कि यू कैन कंट्रोल योर बिजनेस। आपने 3 महीना परचेज नहीं किया, आपका बिजनेस कंट्रोल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके तो खर्चे चालू हैं, उसको तो बिना मतलब के प्रोडक्शन भी लेना होगा और उसके फिक्स एक्सपेंडिचर को चलाना होगा। तो आज के दिन ट्रेडिंग का ये आनंद है कि आप 3 महीने परचेज पे अगर कंट्रोल कर देंगे तो आपकी सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। उसी तरह से आपके जो बायर हैं वो भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो तो थोड़ा थोड़ा 200 मीटर 100 मीटर 300 मीटर खरीद करके रोज बनाते हैं और रोज बेचते हैं। सो आई थिंक दे विल बी ऑल्सो इन अ बेटर सिचुएशन। बेटर मीन्स औरों से बेटर, मतलब खराब तो उनकी भी होने वाली है, सबको लगने वाला है। तो ये तो आज की सिचुएशन से लिंक नहीं है, बड़ी दुकानों का सेल तो बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। रमेश जी, आपने बहुत अच्छी नसीहत दी, काफी कुछ सिखाया, काफी पॉजिटिविटी की बात की, 3 अच्छी अच्छी किताबों का जिक्र किया है, मैंने तो एक भी नहीं पढ़ी थी, मैं भी सीखूंगा, समझूंगा। सो यू हैव टेकन अस इन द राइट डायरेक्शन। काफी कुछ आपने नसीहत दी है जो शायद हर एक अगर अपने इसमें से प्लस पॉइंट ले ले तो काफी कुछ हम लोग फायदा ले सकते हैं। अभी 10 दिन तो मिनिमम है अपने पास रुकने के लिए घर में। I think we can all take some positives of your speech, and we are very thankful for you to come on this platform and guide the traders at this point of time. बहुत बहुत धन्यवाद रजत भाई। आपने किताबें जरूर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैंने ये किताबें पढ़ी है और उसमें जो क्रक्स है वो सारा आप अपना रहे हैं अपने लाइफ में। तो आप तो पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि यू विल रिलेट विद योर लाइफ। और बाकी हमारे जितने मेंबर्स यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं अपने दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, और रजत भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया और मेरी तरफ से जो बातें मुझे समझ में आ रही थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे अपनाइए, नहीं तो यहाँ पर उसी बात को छोड़ दीजिए और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे क्वालिटी लाइफ के साथ में और जो 20-25 दिन हमको गुजारने हैं गुजारिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आने वाला समय सबके लिए अच्छा रहे और खास करके आप लोग सब स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।